Hi guys, I am Babhi. I'm an 11th grader and I opted for humanities in 11th. But that doesn't mean कि मेरे 10th में पूरे marks आए थे या फिर I'm weak in studies. And moreover, the reason I'm here is to tell you all the things that I did to score 99 in SST, 98 in science, and 95 in Hindi. This video might help a few people, so if it does help you, please hit the like button and also subscribe because I'll be posting a lot more videos, lifestyle videos, 10th grade key videos, board exams related, basically like my experiences and all the things. So this video will be covering all the things that I did in 10th grade to score 99 in social science. Although I know the ultimate target was 100, but I really don't know where that 1 marks was cut. But anyways, I think 99 is good enough. Without any further delay, let's begin with everything and all the things I think you need to score a good grade. So first of all, I'll burst this myth कि board exams मुश्किल होते हैं. But I guess अभी तक आपने सुन ही लिया होगा बहुत सारे videos में, if you watch such videos, कि board exams इतने मुश्किल नहीं होते. And the first and the foremost thing that you need to focus on is actually your NCRT. Now I know your teachers and YouTube everyone tells you that NCRT is the key because it really is. And trust me on this one, I in social science I've never used a reference book, and social science is also one of my strong subjects and it has always been, but I have never even once used a reference book for social science. So basically जब आप NCRT cover कर रहे हो, what I used to do personally is I used to always take down notes as and when I'm reading. Now, maybe a better way to do this is actually give the NCRT a read first, read it once, read the whole chapter, then come back and make the notes again. That would, I guess, be the better way, but then it's also a little lengthy, and me being a little lazy person, I used to just read the NCRT and simultaneously take down notes. The second thing and the most important thing is actually making your own notes. I cannot emphasize this enough because actually अपने खुद के notes बनाना is very important. As in when you write, you get the things कि क्या चल रहा है चैप्टर में, क्या हो रहा है चैप्टर किस बारे में, एटलीस्ट आपको उतना पता चल जाता है when you're making your own notes. So I guess NCRT and then making your own notes is like these two things are something that I would never tell you to skip. So अब आपने NCRT से reading लगा ली, आपने अपने notes बना लिए. The next thing that you're gonna do is probably to brush it up and revise a bit. You can watch videos on YouTube. YouTube के कुछ channels मैं आपको जो रेफर करूँगी उनका नाम यहाँ पे कहीं पे होगा. तो और भी चैनल्स हैं जो चैनल्स आप प्रेफर करते हो देखना, जो आपने देखे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो दैट विल ओनली हेल्प पीपल. दीज आर द चैनल्स जिनके वीडियोस मैंने देखे थे. आई ओनली यूज्ड लाइक आई ओनली रेफर्ड टू यूट्यूब फॉर रिविजन्स. सो आपने एनसीईआरटी कर ली, आपने नोट्स बना लिए एंड अब आपने वीडियो भी देख ली टू ब्रश द टॉपिक. नाउ the next thing that you're going to do is do the NCERT back questions. Again, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो एक्चुअली सीधा एनसीईआरटी से उठा के दे देते हैं. सो इट्स लाइक एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर अगेन समथिंग जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं फॉर सम रीजन, एंड आई सॉ एक्चुअली द थिंग कि हाँ कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, कभी कभार एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से ही उठाकर सीबीएसई वाले आपको आपके पेपर में परोस देंगे. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट, एंड I guess, yeah, NCERT questions are necessary and you should do it. उसको skip करने का मत सोचना. So, the next thing that I'll tell you is do not ignore your school exams or tests. जो भी आपके tests हो रहे हैं throughout the year, I'll tell you कि उसके लिए अच्छे से पढ़ के जाओ, because I guess सबका ये थोड़ा सा attitude होता है कि boards है, मेन मार्क्स तो बोर्ड्स के लग रहे हैं, सो व्हाई डू वी इवन प्रिपेयर फॉर मिड टर्म्स और यूनिट टेस्ट और एनी टेस्ट दैट इज गोइंग ऑन. बट आई टेल यू दिस कि आप जब वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो योर अल्टीमेट गोल इज द बोर्ड एग्जाम्स एंड यूर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर इट. सो इट डज नॉट मीन कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो मिड टर्म में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या हो गया.
इट जस्ट मीन्स कि आप जब मिड टर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो साथ ही साथ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। तब आप पूरे थ्रू आउट द ईयर अपनी तैयारी धीरे 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 करके करते जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास उतना बर्डन नहीं होता। जितना बर्डन कम होगा ना, आप उतने अच्छे से चीजों पे फोकस कर पाओगे एंड आप उतना ज्यादा टाइम हर एक टॉपिक को दे पाओगे। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने नोट्स बना लिए, आपने एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस कर लिए, आपने वीडियोस देख लिए, एंड देन यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जाम्स जो स्कूल में होते रहते हैं। नाउ अगर आपके स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स होते हैं, जैसा कि कई स्कूल्स में होता है, हमारे में नहीं हुए थे, हमारा एक ही प्री बोर्ड हुआ था जनवरी में, बट कई स्कूल्स में लाइक 2 प्री बोर्ड्स होता है, दिसंबर और जनवरी दोनों में। एंड प्री बोर्ड्स इज आल्सो काइंड ऑफ अ प्रिपरेटरी थिंग, इट्स मेंट टू प्रिपेयर यू। तो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो इट्स ओके, बिकॉज अगेन प्री बोर्ड्स के मार्क्स का कोई प्रेवलेंस एज सच नहीं है। मेन आपका बोर्ड्स है, एंड प्री बोर्ड्स के बाद इतना टाइम होता है और तब तक आप बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाते हो और हो जाएगा। प्री बोर्ड्स के लिए आपको इसीलिए प्रिपेयर करना है ताकि आपको पता चले कि हाँ मैंने पढ़ा, मैंने ये टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर दिया पेपर में, तो अब इसमें मेरी क्या गलती हुई, मैं क्या चीजें इम्प्रूव करूं। अगर इंग्लिश वगैरह का एग्जाम है तो योर टीचर कैन टेल यू एक्चुअली कि अगर आपके आंसर राइटिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है, किस तरह से आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हो। इस चीज में मत पढ़ो कि प्री बोर्ड्स है, मतलब अगर मेरे परसों प्री बोर्ड्स है तो मैं पूरा पूरा सिलेबस कर लूं 2 दिन में। आप एक एक जितने भी आपके चैप्टर्स हो रखे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके आपको जाना है, ताकि आप अपने आप को उन चैप्टर्स में टेस्ट कर सको कि बेसिकली ये चैप्टर्स आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं या आपको इनमें और मेहनत करनी है। लाइक आई सेड, मैंने एसएसटी के लिए कभी कोई रेफरेंस बुक नहीं खरीदी, नहीं पढ़ी कभी, बस मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। सो अगेन एनसीईआरटी के अलावा जो एक और बुक मैंने पढ़ी है या मैंने लाइक यूज करी है, इट्स बेसिकली एक ओसवाल की बुक है। अगेन दिस इज नॉट अ प्रमोशन ऑफ कोर्स, दिस इज जस्ट कि मैंने वो यूज करी थी। आप अपने हिसाब से कोई और बुक किसी भी कंपनी की ले सकते हो। आई ऑलवेज रिकमेंड यू कि अगर आप पीवाईक्यूज की कोई भी बुक ले रहे हो तो प्रेफर टेकिंग द वन जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिले। और इस बुक में लाइक 10 इयर्स के पीवाईक्यूज थे, तो मुझे इसके अलावा पीवाईक्यूज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं हमेशा आपको यही बोलूंगी कि अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर भी रहे हो तो look at the questions, refer it for the questions, but don't refer it for the answers, because at the end of the day जो टीचर आपका एग्जाम चेक कर रही है उनके पास जो आंसर की है, दैट इज उस आंसर की में सब कुछ एनसीईआरटी का है। सो ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर कि आप जो भी रेफरेंस बुक यूज अगर कर रहे हो, डू नॉट लुक एट द आंसर्स, जस्ट रेफर इट फॉर द क्वेश्चंस। देयर इज दिस वन थिंग जो हम लाइक मैंने पहली बार 10th में सुनी थी, नॉट एग्जैक्टली पहली बार बट बहुत ज्यादा बार मैंने 10th में आके सुना था, एंड आई गेस और लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि 10th में आके ना ये चीज हमें बार बार सुनने को मिलता है, विच इज सैम्पल पेपर्स। सो सैम्पल पेपर्स के लिए आई टेल, लाइक वैसे तो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है ये, बिकॉज सम पीपल आर ओके विद सीइंग न्यू क्वेश्चंस, उनको इतना वो डर नहीं लगता, बट आई एम समवन जिसको नए क्वेश्चंस देखकर, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, और अगर मेरा एग्जाम्स आ रहा है तो मेरे को बहुत डर लग जाएगा, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा सैम्पल पेपर्स सॉल्व नहीं करे थे, बट अगैन यू कैन डू इट और यू आर नॉट। बट हाँ, मैं रिकमेंड करूंगी आप एक दो तो करो, एंड एक दो आप लाइक ऐसे टाइमर लगा के 3 घंटे में करने की कोशिश करो, बिकॉज दैट गिव्स यू काइंड ऑफ लाइक एक कॉन्फिडेंस देगा। या अगर आप कहीं लैग कर रहे हो तो अगेन वो आपको पता चल जाएगा, सो यू कैन वर्क ऑन इट, एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी डन इजीली गाइज, अगर आप अभी भी शुरू करो। गाइज आई एम नॉट अ वेरी टाइम टेबल वाला पर्सन, मेरे से टाइम टेबल मैं बना लूंगी बट मेरे से वो फॉलो नहीं होगा, और जब वो फॉलो नहीं होगा तो आई फील वेरी डीमोटिवेटेड। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, दिस इज द डायरी। इसमें मैंने हर दिन जो टॉपिक्स मेरे को कवर करने हैं मैं वो लिखती थी, लाइक रात को लिख लिया या सुबह लिख लिया, वट एवर, शुरू करने से पहले, लाइक एक्चुअल पढ़ाई शुरू करने से पहले। सो आई विल शो यू, यहाँ पे कहीं वीडियो आ जाएगी, तो मैं ऐसे टॉपिक्स लिख लेती थी मुझे क्या क्या करने हैं। या फिर कई दिन ऐसा होता था कि व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जो टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ उसके बाद आई यूज्ड टू राइट कि मैंने ये कर लिया। उससे ये फायदा होता है कि अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रह गए या कुछ चैप्टर रह गया तो मेरे को ऐसा डिमोटिवेशन फील नहीं होगा, बिकॉज मैं वही लिख रही हूँ जो मैं करती जा रही हूँ। बिकॉज एक्चुअली टेलिंग यू गाइज, इस टाइम पे ना मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार ये होता है ना, बहुत आप एग्जॉस्ट हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, आपको लगता है कि यार बस हो गया, बहुत टाइम से मैं यही कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। बट देन गाइस व्हेन यू एक्चुअली थिंक ऑफ इट ना, ये कुछ टाइम का है, एंड जब आपको वो रिजल्ट मिलता है ना, तो यू एक्चुअली फील वेरी हैप्पी। एंड ऑल्सो समथिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इज कि आप जब क्लास में पढ़ रहे हो और अगर आपकी टीचर्स जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है, मेरे साथ तो यही था, बिकॉज आई थैंकफुली आई हैड वेरी गुड टीचर्स, तो मुझे किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा, सिवाय मैथ्स की मेरी ट्यूशन थी। बट एक्सेप्ट फॉर दैट मेरे को किसी सब्जेक्ट में ट्यूशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज थैंकफुली मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो अगेन क्लास में भी आप अटेंशन दो, क्लास में अच्छे से सुनो टीचर क्या कह रही है, साथ साथ फॉलो करो, तो दैट विल ओनली हेल्प यू। बिकॉज एक्चुअली में ना क्या होता है, जब आप पेपर लिखने बैठते हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपने वो शायद क्वेश्चन आपने एक दिन पहले 2 दिन पहले ना पढ़ा हो, बट क्लास में शायद कभी आपके टीचर ने वो क्वेश्चन को मेंशन करा हो और उसका आंसर मेंशन करा हो, और वो अचानक से आपके सबकॉन्शियस से क्लिक करेगा कि हाँ ये तो मैंने सुना था। सो आई गेट, एंड उस मोमेंट पे ना ऐसा लगता है कि थैंकफुली मैंने क्लास में सुना था। Yep, guys, that was it for this video. Thank you so much for watching it, and I hope this helped you. And if it did, please like this video and let me know in the comment section and subscribe to this channel. This was the first video on my channel, and I'll be making many more. Also, do let me know अगर आपको जानना है about my experiences of the board exams and कैसे कैसे क्या हुआ, because personally जब मैं देने जा रही थी बोर्ड एग्जाम, पहला मेरा बोर्ड एग्जाम हिंदी का था, तो बहुत गंदी तरीके से डर लग रहा था, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि क्या होता है कैसे होता है। बहुत ज़्यादा मेरे को वीडियोस नहीं मिली थी, होंगी क्या पता, सिर्फ मुझे ना मिली हो, बट मुझे नहीं मिली थी। सो इफ यू वांट टू नो द एक्सपीरियंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।